Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Maharaj's message is your advantage. The following is an initiation talk given by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj on June 16th, 2022 at ISKCON New Rajpur Jagannath Dham in Bangalore. Panghum langayate girim Shri Gurum Dinatarinam Shri Chaitanya Ishwaram. Hari Om Tat Sat. You heard the lecture on the 10 offenses. तो आपने 10 अपराध के विषय में प्रवचन सुना अभी. And taken your vows. तो आपने प्रण शपथ अभी ले ली है. I listened to a lecture this morning. तो आज सुबह मैं एक प्रवचन सुन रहा था. And Prabhupada was saying how human beings, we should avoid bringing any sins. तो प्रभुपाद बता रहे थे कि कैसे हम मनुष्य हैं और हमें पाप नहीं करने चाहिए. So, by avoiding eating meat, fish, egg, onion, garlic, तो ये जो मांस, अंडा, मछली, प्याज, लहसुन, अगर इसे हम नहीं खाते हैं, no gambling, ये जुआ सट्टा नहीं करते हैं, no intoxication, नशा नहीं करते हैं, and no illicit sex. और अवैध संग नहीं करते हैं. Any sex outside of marriage is illicit. तो विवाह के अलावा कोई भी संबंध अगर स्थापित होता है वो अवैध माना जाता है. The grihastha life, that war is very important. तो गृहस्थ जीवन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है. It's the only ashram where sex life is allowed. यही एक ऐसा आश्रम है जहाँ पर यौन संग किया जा सकता है. There are two types of householders. 2 तरह के गृहस्थ होते हैं. Grihamedi and grihastha. एक होता है गृहस्थ और एक होता है गृहमेदी. Grihamedi means that they only work hard for sense gratification. तो गृहमेदी का मतलब ये होता है कि वो बहुत ही परिश्रम करते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए. Grihastha means that they keep Krishna in the center. और गृहस्थ का मतलब ये है कि वो भगवान कृष्ण को केंद्र करते हैं. And they use their senses in a controlled manner to please Krishna. और वो अपनी इंद्रियों का उपयोग करते हैं संयमित माध्यम से भगवान की सेवा में. Being in this material world is suffering and enjoyment. तो इस भौतिक जगत में हमें सुख भी मिलते हैं और दुख भी मिलते हैं. But the enjoyment is very limited, and that's simply on the basis of our material body. और जो आनंद, जो सुख की हमें प्राप्ति होती है, उसका जो माध्यम, उसका जो बेस है वो है हमारे भौतिक शरीर. However, the real purpose of human life is spiritual. लेकिन मनुष्य जीवन का असली जो उद्देश्य है वो है आध्यात्मिक. Atata Brahma Jigyasa. अथातो ब्रह्म जिज्ञासा. Human beings, they have nice facilities. तो जो मनुष्य हैं जब उनके पास अच्छी सुख सुविधाएं होती हैं, Cities, apartments, beds, शहर होते हैं बड़े बड़े, उनमें बड़े बड़े बिल्डिंग होती हैं, घर होते हैं, comforts. और बहुत सुख सुविधाएं, आराम होते हैं. Why? क्यों? Dogs, hogs,
the whole day they're working to eat. तो जो कुत्ते होते हैं या सूअर होते हैं वो पूरा दिन मेहनत करते हैं खाने के लिए And fighting each other. और एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं, Sometimes they have sex on the street anywhere. और कभी कभी भी वो रोड पर ही, सड़क पर ही संभोग करते हैं, There's no spiritual life. क्योंकि उनका कोई आध्यात्मिक जीवन नहीं है। A human being are meant for spiritual inquiry. लेकिन जो मनुष्य जीवन है वो है आध्यात्मिक प्रश्न करने के लिए, जिज्ञासा करने के लिए। That's why a human being doesn't have to work as hard as an animal. इसीलिए जो मनुष्य हैं वो जानवरों की तरह उनको कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। A human being should try to understand who is God. तो मनुष्यों को समझना चाहिए कि भगवान कौन है। In Bhagavatam, it describes that this impersonal Brahman तो भगवतम में बताते हैं कि कैसे एक दिव्य ब्रह्म ज्योति हैं, all pervades the Paramatma. तो कैसे भगवान परमात्मा है, Ultimately, there's the Bhagavan, और आखिरकार में वो भगवान हैं, the Supreme Personality of God. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। So, in Bhakti Yoga, we focus on the personality of Godhead. तो भक्ति योग में हम भगवान के जो व्यक्तिगत रूप हैं उसमें ध्यान करते हैं। Throughout Prabhupada's books, he talks about Vanaprastha, sannyas. तो प्रभुपाद अपनी पुस्तकों में बहुत बार वानप्रस्थ संन्यास के बारे में बात करते हैं। But actually, I read one letter. Prabhupada said, if the wife is a healthy one in the spiritual life, she's very service-minded, you don't need to take sannyas. लेकिन मैंने एक पत्र में पढ़ा था जिसमें श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, अगर किसी की पत्नी उन्हें भक्ति में सहायता कर रही हैं तो उन्हें संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। Bhaktivinoda Thakur, he was a grihastha his whole life. श्रील भक्ति विनोद ठाकुर पूरे जीवन गृहस्थ थे, And he had Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada और उन्होंने as son. अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को। He had various children who were all devotees. तो उनके और भी पुत्र थे लेकिन वो भक्त नहीं थे, Late Prasad Thakur, others. जैसे ललित प्रसाद ठाकुर और आदि। Now, we want to use our senses in the Krishna service. तो हम चाहते हैं कि हम अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करें, उपयोग करें भगवान की सेवा में। In our house, use our deities, अपने घरों में हम विग्रहों की विग्रह रख सकते हैं, chant Hare Krishna, हरे कृष्ण मंत्र का जप कर सकते हैं, chant Japa, 16 rounds a day minimum, हरे कृष्ण का कीर्तन जप कर सकते हैं, कम से कम 16 माला करनी चाहिए, and we do kirtan. और कीर्तन कर सकते हैं। We read Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, हम भगवत गीता और श्रीमद् भागवतन का अध्ययन कर सकते हैं, Charitamrita, चैतन्य चरितामृत का अध्ययन कर सकते हैं, and in this way, our consciousness is purified. और इस प्रकार से हमारी चेतना है वो शुद्ध होती है। We offer our food to Krishna, जो भी हम भोग बनाते हैं वो भगवान को अर्पित करते and हैं we take prasadam. और फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। I think I told you about the drama they had in Chennai. तो मुझे लगता है शायद मैंने आपको जो एक नाटक हुआ था चेन्नई में उसके बारे में बताया था। Little children छोटे बच्चों ने वो नाटक किया था, were playing the part of Yamadutas. तो छोटे बच्चे नाटक में यमदूत का जो भूमिका निभा रहे थे, And one child was playing the part of Yamaraj. और एक छोटा बच्चा यमराज की भूमिका निभा रहा था। When children playing Yamaduta, they said, "What do we do?"
what should we do? तो जो बच्चे यमदूत की भूमिका निभा रहे थे वो बोल रहे थे हम क्या करें, हम अब क्या करेंगे। These Krishna conscious householders, they have deities in their house. ये जो कृष्ण भक्त हैं, गृहस्थ हैं, इनके घरों में भगवान के विग्रह हैं। Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam hai. इनके घरों में भगवत गीता और भागवतम है। Hare Krishna नाम करता है. हरे कृष्ण नाम करता है। हरि बोल। नरक में नहीं इनको नरक में हम कैसे ले जाएंगे। I will have to find another job. तो वो यमदूत कह रहे थे कि हमें कोई दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। Everyone becomes like this, nrk will be empty. अगर सभी भक्त बन जाएंगे तो नरक खाली हो जाएगा। A very nice drama. तो एक बहुत ही अच्छा नाटक प्रस्तुत किया था चेन्नई में। At least we want our grihastas, our devotees, to be careful and stay Krishna conscious. तो हम चाहते हैं कि कम से कम हमारे गृहस्थ भक्त बहुत ही ध्यानपूर्वक रहें और कृष्ण भावना भावित रहें। You can bring up your children in a Krishna conscious way. I'll be very pleasing. और अपने बच्चों का पालन पोषण करें कृष्ण भावनामृत में, वो बहुत ही अच्छा होगा। So please perform the Navaveda Bhakti. तो कृपया नववेदा भक्ति करें। And what King Amrish did was came into the temple, he leaned the temple, get darshan of deities. तो अम्बरीश महाराज उन्होंने लगभग अपनी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में इस्तेमाल की, उपयोग की। वो अपने भगवान के मंदिर में जाते थे, दर्शन करते थे, उन्हें प्रणाम करते थे। He heard the classes, he chanted Hare Krishna. भगवान के विषय में प्रवचन सुनते थे, हरे कृष्ण का जप करते थे, He offered his obeisances. भगवान को प्रणाम करते थे। Like this way he did all the 9 processes of Bhakti Yoga. इस प्रकार वो पूरे 9 जो नववेदा भक्ति हैं उसका पालन करते थे। Even Durvasa Muni, he got unnecessarily angry at him, cursed him, but Durvasa Muni was chased by Sudarshan Chakra. तो एक बार ऐसा हुआ था कि दुर्वासा मुनि ने बेकार में ही अम्बरीश महाराज को एक शाप दे दिया था, लेकिन उसके बाद सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गए थे। Just taking renounced life doesn't matter. So is the devotee that matters. तो वैराग्य जीवन ज़्यादा महत्व नहीं रखता है, भक्त का जीवन, भक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण है। Amrish Maharaj, he was a grihasta, because he was a devotee, he was protected. तो अम्बरीश महाराज एक गृहस्थ थे, लेकिन वो एक भक्त थे, इसीलिए उनका बचाव भगवान ने किया। Finally, Durvasa Muni and Brahma, Shiva, Vishnu, but they all said, only one who can forgive you is Amrish. तो दुर्वासा मुनि अपने बचाव के लिए ब्रह्मा, शिव, विष्णु के पास गए, लेकिन उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति आपको इससे बचा सकता है तो वो अम्बरीश महाराज हैं। He paid his obeisances to Amrish. तो दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज को प्रणाम किया। Amrish, in a humble Vaishnava, he said, please take your shot. तो अम्बरीश महाराज जो कि एक बहुत ही दीन भक्त थे, उन्होंने कहा कृपया करके आप प्रसाद ग्रहण कीजिए। हरि बोल। So, taking initiation is a very serious thing. तो आप जो दीक्षा है उसे बहुत ही गंभीर रूप में लीजिए। You're connected to the parampara. आज दीक्षा के बाद आप गुरु परंपरा के साथ जुड़ जाते हैं। And we hope that you'll be very careful and follow all the laws. और हम आशा करते हैं कि आप बहुत ही ध्यानपूर्वक भक्ति करेंगे और नियमों का पालन करेंगे।
and make many other devotees. और भी बहुत भक्त बनाएंगे। Hare Bol. हरि बोल। Thank you for watching our videos. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.